Good morning, everyone. Today we are going to study the second chapter of Economics of Class 9, which is People as Resource. Population of a nation can be it is asset rather than liability. People as resource refer to a country working people in terms of their existing productivity, skill and ability. When existing human resource is believed to develop by becoming educated and healthy, it turns into human capital. Human capital is superior to other resources like land and physical capital, as it is use these capital and add value to them. Human beings perform many activities which can be grouped into economic and non-economic activities. Economic activity. Economic activity refer to the activity of man which are undertaken which are undertaken for a monetary gain or to satisfy his her want. Market activity and non-market activity, economic activity are also called as market activity. Non-market activity are also called as market activity. Non-market activities are productive production for self-consumption. Non-economic activity. Non-economic activities are one that are not undertaken for any monetary gain. These are also called unpaid activities. Various economic activity can be classified into their three main sectors. Primary sector. The primary sector includes activity like agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry. In this sector, goods are produced by exploiting nature. Secondary activity. In the secondary sector, manufacturing and construction activity are included. Tertiary sector. The tertiary sector provides various types of services like transport, education, banking, insurance, health, tourism, etc. In India, traditionally, there is division of labor between men and women. Women generally look after domestic affairs like cooking food, cleaning utensils, and looking after children. Human capital. Human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in human being. Population become human capital when it is provided with better education, training and healthcare facility. Quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, life expectancy, and skill formation acquired by the people of country. Role of education. Education is the most important component of human resource development. It contributes towards the growth of the society, enhance the national income, cultural richness. Health is another very important component of human resource development. Efficiency of worker largely depend on their health. Unemployment. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the prevailing wages rate cannot find job. Nature of unemployment in India. Seasonal unemployment occurs when people fail to get work during some month of the year. Farm laborers usually face this kind of problem. Disguised unemployment is another kind of unemployment found in rural areas. Such kind of problem arise due to excessive pressure of population on agriculture. Disguised unemployment refer to a situation where in number of worker in a job is more than actually required to do the job. Consequences of unemployment. Unemployment lead to wastage of
manpower resource. Unemployment tend to increase the economic overload that is depend of the unemployment on the working population. Unemployment may lead to increase in social unrest and tension. People as resource. जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की एक धन धन या उसके एसेट के रूप में मानी जाती है, ना कि उस पर बोझ मानी जाती है। लोग जो संसाधन के रूप में रेफर इसलिए किए जाते हैं किसी जगह पे, क्योंकि उन्हीं लोगों के काबिलियत और क्षमता के अनुसार ही के आधार पे ही देश का आय निर्भर करता है। जब वहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है वैसा विकसित होगी, किसके बाद उनको शिक्षा और उनके स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बाद तो वो मानव संसाधन पूंजी के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये मानव पूंजी जो होते हैं ये सब संसाधनों में सबसे ऊपर आते हैं, चाहे वो संसाधन जमीन ही क्यों ना हो या फिर वो भौतिक जो पूंजी आजकल हम जो पैसे की बात कहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी को बनाने वाला मानव ही होता है, जिसमें जिसमें मानव को शिक्षा स्वास्थ्य और जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको देने के बाद एक मानव जो है एक संसाधन के रूप में विकसित होता है। मानव सभ्यता के अनुसार जितने भी क्रियाएं की जाती थी या आज तक जो करती गई हैं उनको एक समूह के रूप में हम देख सकते हैं, जिसको हम लोग आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं से मतलब है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जी किसी भी तरीके का काम जो करता है, खास करके वो पैसे कमाने या कोई पूंजी कमाने के लिए करता है, जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यह चाहे बाजार में होने वाली आर्थिक क्रियाएं होंगी या फिर गैर बाजार से आधारित आर्थिक क्रियाएं हो सकती हैं। गैर बाजार की आर्थिक क्रियाएं वैसे आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो कि बाजार में सम्मिलित नहीं होती हैं, लेकिन जो गैर बाजार की क्रियाएं होती है वो उत्पादन और सेल्फ कंजप्शन के लिए मतलब खुद के खपत के लिए भी होती हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसको कार्य के रूप में तो किया जाता है, लेकिन उससे किसी तरह की पूंजी का लाभ नहीं होता है। इसको हम लोग अनपेड एक्टिविटीज़ मतलब बिना मानदेय का रोजगार भी कहते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप मानवों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं मुख्य 3 वर्गों में, जो कि प्राइमरी सेक्टर आर्थिक क्रियाकलाप में वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जैसे कि जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि जितने भी हैं जो कि खास करके प्रकृति का दोहन करके उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप द्वारा पाए गए वस्तुओं को अपने आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा स्वरूप बदलकर उसको मूल्य प्रदान कर दिया जाना होता है। इस तरह की क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्वितीय प्रकार की क्रिया कहते हैं। टर्सरी सेक्टर, ये एक सेवा क्षेत्र है जिसमें खास करके परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ और पर्यटन जैसी सुविधाएं और क्रियाकलाप आ सकते हैं। भारत में अगर पारंपरिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे श्रम का डिवीजन जो है महिला और पुरुष के बीच में किया गया है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं को हम लोग ट्रीट सही से नहीं करते। हम लोग ये देखते हैं कि महिलाएं जो है वो घरों में सिर्फ काम कर सकती हैं, खाना पका सकती हैं, साफ़ सफाई कर सकती, बर्तनों साफ कर सकती हैं और बच्चों को वो देखभाल कर सकती हैं। इस तरह के क्रियाकलाप वो महिलाएं कर सकती हैं। इस तरह का जो है लेबर का डिवीज़न हमारे यहाँ पे समाज में मिलता है। अब ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी एक संग्रह है। किसका? मानव पूंजी संग्रह होता है गुण उत्पादन और ज्ञान के साथ मिलकर एक मानव के द्वारा उत्पादित की जाने वाली उन सारे पूंजियों को जो कि राष्ट्र और राज्य के विकास में स्वतः उसके विकास में काम आती है।
इसको खास करके तब ये तैयार होता है जब उसको किसी तरीके का शिक्षा और प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, तो वो एक विशिष्ट संसाधन के रूप में उभरता है, जो कि वो मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का गुणवत्ता निर्भर करता है वहाँ पे साक्षरता दर, वहाँ के जीवन शैली के ऊपर में, उनकी प्रशिक्षण के ऊपर में, साथ ही साथ उस देश में लोगों के द्वारा एक्वायर किए जाने वाले क्रियाकलापों के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से कई चीज़ें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है मानव संसाधन के विकास में, क्योंकि ये अपना सबसे बड़ा योगदान मानव के विकास में और यहाँ तक कि समाज के विकास में और राष्ट्र के आय के रूप में विकसित करता है। शिक्षा न केवल मानव को ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें शिक्षित करता है, बल्कि उनको उनकी सभ्यता के बारे में परिचित कराता है और अपनी सभ्यता को और ज़्यादा उजागर करता है, लोगों के सामने लाता है। वहीं पे स्वास्थ्य जो है वो दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण घटक इसलिए माना जाता है कि मानव संसाधन अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो उसमें काबिलियत और उसकी क्षमता जो है उत्पादन करने या किसी तरह के कार्य करने की घट जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनका उत्पादन जो है कम होगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट, यह एक ऐसी दशा है, जैसा कि कहा जाता है कि कई लोग जो है काम करना चाहते हैं लेकिन उनको उनके अनुसार कार्य नहीं मिलता है, जो कि वो जॉब खोजना चाहते हैं, उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। अब प्रकृति देखेंगे कि किस तरीके से भारत में बेरोजगारी की प्रकृति या प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। मौसमी बेरोजगारी खास करके उन जगहों पे होती है जहाँ पे जब कभी भी लोग जो हैं खेती के समय में या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पे कुछ समय के लिए लोगों के पास रोजगार होता है लेकिन बाकी समय में वो खाली बैठे रहते हैं। खास करके देखा जाए तो खेतों में फार्म लेबरर जो कि यूजुअली खेतों में काम करते हैं, लेकिन जब खेती का सीजन खत्म हो जाता है तो उनके पास कोई काम नहीं बचता है। इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसका डिसगर्ज अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक अलग ही प्रकार का बेरोजगारी का स्वरूप है, जो कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या अधिक होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके देखा जाए, अगर एक परिवार में लोग ज़्यादा हैं और उनके पास ज़मीन कम है तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर में लोगों की संख्या का ज़्यादा भार पड़ेगा और उत्पादन कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है कम हो जाता है और लोग जो है उसके उत्पादन के लिए अलग अलग ज़मीन या खरीद नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो कार्य सीमित हो जाता है और लोगों की संख्या उस कार्य को करने की ज़्यादा हो जाती है, तब इस तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो पैदा होती है उसको हम लोग डिसगर्ज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। अब प्रवृत्तियाँ अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की प्रवृत्तियाँ। बेरोजगारी सबसे बड़ा इसकी प्रवृत्ति ये होती है कि बेरोजगारी जो है व्यय करता है मानव के शक्ति को, मानव शक्ति संसाधन का सबसे बड़ा व्यय है, क्योंकि अगर बेरोजगारी होगी तो उसमें किसी भी प्रकार का मानव जो है उसमें संलग्न नहीं होता है, उसमें मानव की क्षमता बेकार ही जाती है। साथ ही साथ बेरोजगारी लोगों के बीच में एक अव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करती है, जो कि आर्थिक रूप से उनके ऊपर में लोड पड़ता है, उनके ऊपर में दबाव पड़ता है और साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ती भी जाती है। बेरोजगारी के चलते लोगों के बीच में, यहाँ तक कि समाज में कई बड़े दुष्परिणाम होते हैं। लोगों के बीच में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं या फिर चोरी या फिर डकैती, इस तरह की असामाजिक घटनाएं जो हैं घटित होती हैं, ये बेरोजगारी के चलते होती हैं।